नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी के भी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, one more reset for the Congress, right? Yes. For the first time, Rahul Gandhi comes along and says, "Hey, listen, we forgot about the OBCs." I mean, is he serious? I don't know. हमेशा वो ओबीसी की बात करते थे अचानक, मगर शायद वोट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कहा कि somehow we have not met the target and we have lost the OBC, and everybody acknowledges OBC is a big segment of the population. And the OBC vote It's was a huge lost segment to the Congress. Yes. After the rise of Mulayam Singh Yadav ji and Lalu Yadav ji. ये बिल्कुल। वो पूरा जो OBC वोट है उस तरफ से शिफ्ट हो गया। Yes. तो Heartland and महाराष्ट्र जैसे एरियाज में it was divided. Yes. It was divided, and BJP right now Mahayuti was the biggest beneficiary. The biggest beneficiary, and definitely OBC votes. It is for everybody. It is जितने भी political parties है, everybody is eyeing. As you said, regional parties have taken the OBC votes away from Congress. और दूसरी चीज उन्होंने ये कही, एक बार फिर दोहराई कि भाई महाराष्ट्र में एक बार फिर फ्रॉड हुआ है, इलेक्शन फ्रॉड, कि भाई वोटर्स लिस्ट रिलीज नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन अभी तक रिलीज नहीं कर रही है, और उसको उन्होंने फिर रिलेट किया जैसे आप बोल रहे थे ईवीएम के साथ। नाउ द पॉइंट इज, I don't know why the election commission is not releasing the voters list. आप रिलीज कर दीजिए ना, क्या है उसमें? अब प्रॉब्लम कहां आती है प्रदीप जी? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, निर्वाचन आयोग जो है, अगर वो विलंब करता है कोई भी लिस्ट रिलीज करने में या कोई भी डेटा देने में, तब जाकर के सवाल उठ जाते हैं कि भाई ये एकदम 65 लाख वोटर्स जो हैं वो कहां से आ गए, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल द इलेक्शन कमीशन हैज टू डू इज, हे लिसन, दिस इज द वोटर्स लिस्ट, प्लीज चेक, व्हाट्स द प्रॉब्लम, दैट्स इट। So I don't really know why does the election commission not be transparent, and why don't they just say, hey listen, this is it, we've got nothing to hide, and that'll be the end of it. Sir, I think right now everybody has got the technology and the manpower to decipher, because all the voters are online. All Yes, the voters are online. absolutely they are. All you need to know is what is the information that you require. Based on that, your team can actually calculate it. और जो ये मिस्ट्री है कि 3 महीने में 4 महीने में इतने सारे वोट्स ज्यादा कैसे हो गए, तो I think it's very easy for any political party who goes. But if you want a stamped, approved copy from the election commission, but तब तक आप अपने कॉपी तो बना सकते हो सर। जी। The world, the country needs to know exactly what is the problem. राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कुछ इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, बट आई थिंक एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉट द टेक्नोलॉजी टू फाइंड आउट ये इतने। I think perhaps that is deliberate, Pradeep ji. They know they would like to put the election commission under pressure, and therefore they would like to say, hey listen, a fraud has occurred. Yes, that's yes, it. yes. In any event, I think we've got a wonderful panel of guests today. We've got Sushil Vyas Sahab of the Shiv Sena with us, and we've got Dr. Surena Malhotra of the NCP Sharad Pawar also with us. Namaskar ma'am, how are you? Namaskar, I'm fine. Sushil Vyas ji, namaskar. नमस्कार जी। और हमारे पुराने मित्र गोपाल तिवारी साहब पुणे से। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। अरे कितने खुश लग रहे हैं गोपाल तिवारी साहब आज। क्या बात है सर। मुझे खूबसूरती आपके दिल की है सर। मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है काफी कोई बड़ा आप कुछ जीत के आए हैं अभी, लगा था। You are so kind। सर ऐसा है गोपाल तिवारी जी, अब ये बताइए कि ये कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है उसमें रीसेट हो गया है। अब उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अभी राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट है आज की कि भाई अभी तक जो है हम लोग दलितों पर और माइनॉरिटीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो ओबीसीज जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो भी पिछड़े वर्ग हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने इतना फोकस नहीं किया, सो वी शुड फोकस ऑन देम। सो क्या इज दिस अ रीसेट सर? गोपाल तिवारी जी प्लीज। सर जो उन्होंने जो बोला है जी, तो कई बातों में एनालिसिस हुआ है। चुनाव आयोग की जो गलतियां है वो अलग, फिर भी हमने काफी कोशिश की हर राज्यों से कुछ रिपोर्ट मंगाने की, तो उसमें कुछ बातें सामने आई है, तो वो रखा है उन्होंने, और क्या बाकी। जी, तो आपके मुताबिक दिस इज नॉट अ रीसेट?
नहीं, वो उसमें तथ्य भी है ना, जी। मतलब एक कारण नहीं है, अनेक कारण है, उसमें से एक कारण वो भी हो सकता है ऐसा। जी गोपाल जी, बट बार बार ये खड़गे साहब भी ऐलान कर दिया, राहुल गांधी जी भी ऐलान कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से व्यास जी और महायुति ने पार्टी जीता है, कंप्लीट स्वीप जो किया है, जैसे इट्स एन इलेक्शन फ्रॉड। और इलेक्शन, राहुल गांधी जी कहा कि हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को बोला वो वोटर्स लिस्ट डिटेल्स दे दीजिए, वोटर्स लिस्ट दे नहीं रहे इलेक्शन कमीशन। इट इज अपेरेंट जो महायुति जीता है, इट्स एन एब्सोल्यूट फ्रॉड, दिस विक्ट्री वाज इम्पॉसिबल। ये बार बार क्यों जिक्र कर रहे हैं गोपाल तिवारी जी? सर इसलिए कि इसके ऊपर अगर कोई उनको कुछ तो लगे इलेक्शन कमीशन को और वो दे, इन्होंने वो बात पार्लियामेंट में ही रखी, आपने देखा होगा। उसके बाद सुप्रिया सुले और संजय देशमुख, संजय राउत जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उन्होंने। और अभी आप दोनों की मैं चर्चा सुन रहा था, आप और राजू जी, आप भी ये कहीं कहीं एडमिट करते हैं कि ये बार बार मांगने के बाद भी सर इतने 75 वोट्स लाख वोट्स ज्यादा हो गए और उसमें इतने 39 लाख वोट बढ़े कैसे? तो उसका देना चाहिए ना सर, इलेक्टोरल रोल देना चाहिए, जो कहाँ से वोट है, वोट तो कंपेयर होना चाहिए। अगर कम से कम पहले कितने वोट थे और उसके बाद में जो रिजल्ट आया है वो तो टैली तो होना चाहिए ना। ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो नहीं दे पा रहे हैं। अभी ये लोग ऐसे ही चला रहे हैं और क्या, देश की जनता देख रही है। तो गोपाल तिवारी जी कहने का मतलब ये हुआ और मुझे बड़ा मैं बड़ा अचंभित हूं इस बात पे, आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि अगर जो भी डेटा मांगा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा या अन्य गैर भारतीय जनता पार्टी दल जो हैं उन द्वारा कि भाई ये हमें डेटा दे दीजिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग पार्टी, एनडीए, गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन सबके हित में है कि इलेक्शन कमीशन फटाफट दे दे, बोले भाई ये सब डेटा जो आप चाहिए ये वेबसाइट पर है, जाकर के देख लीजिए। व्हाई आर दे विदहोल्डिंग डेटा? क्योंकि अगर कोई डेटा विदहोल्ड किया जाता है तो उस पर फिर शक पैदा होता है, सवाल आते हैं कि यार ये गड़बड़ है कुछ। बोलिए गोपाल तिवारी जी। सर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था, शायद आपके जानकारी में होगा। उसके बाद देयर आर सेवरल रिट पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एडमिट करके लिया है। तो ये सब कोर्ट के सामने जब मामला आएगा तभी उनको देना पड़ेगा, या तो फिर उनके पास नहीं है, उन्होंने धांधली की है, यही साबित होता है। और क्या, जब तक आप देखो आप सत्ता पे हो तो प्रभु श्री राम का नाम लेते हो। प्रभु श्री राम का चरित्र यह कहता है कि सत्यनिष्ठा। अगर किसी ने भी, कोई भी कॉमन मैन ने भी अगर कोई शंका निकाली तो उसका शंका का निराकरण करना है, वो सत्ता पार्टी का कर्तव्य रहता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उन्होंने ये देना चाहिए। और बार बार अभी पार्लियामेंट में रिकॉर्ड पे ये बात आई है, सब जगह आई है, और वो नहीं दे रहे तो लोग देख रहे हैं, लोगों के इसमें भी उसके प्रति पूरी डाउट है, शंका है। और क्या, तो इसके पहले कि मैं डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा के पास जाऊं, एक और चीज बताते हैं सर, ये सफेद कमीज वाली जो कैंपेन आप चला रहे हैं वो क्या है सर? व्हाइट शर्ट, ये मतलब व्हाट इज दिस सर? कौन सी व्हाइट शर्ट कैंपेन, व्हाइट शर्ट आंदोलन? राहुल गांधी जी सफेद कमीज वाला आंदोलन चला रहे हैं, ये क्या है सर? सर ये यूथ कांग्रेस में और यूथ लोगों में एक अलग से इंस्पिरेशन है भाई, कि भाई हमारा नेता सिंपल सादगी, और जो इतने ठंड के दिनों में भी भारत जोड़ो यात्रा 6-7 महीने जिन्होंने पैदल चली थी और सिंपल से टी शर्ट रहता है, तो ये अपने अपने युवकों का जो जोश है उनके प्रति एक आदर भाव है, डेडिकेशन है उसके प्रति। और क्या जी। डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा मैम, अभी अभी दो चीजें सामने आई। नंबर एक, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि अनिल देशमुख साहब की जो किताब है, कैन यू हियर मी मैम? यस, ओके। Supriya Sule ji has said that Anil Deshmukh's book is about to be banned by the Maharashtra government. Now, I just came to know that he had written a book. I believe the book came out in October. और सुप्रिया सुले जी ने एक दो और आरोप लगाए हैं सरकार पर, और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो आमरण अनशन पर भी बैठने वाली हैं।
Why such a drastic step, ma'am? बेसिकली आपने देखा, एक तो अनिल देशमुख जी का जो बुक है, एक तो देयर हैज टू बी एवरीबडी हैज अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। उन्होंने काफी अपने जो अपने उनका जो ओपिनियंस है, उन्होंने इतने साल जो सत्ता पे थे, उन्होंने जो देखा तो वो उन्होंने सब लिखा है। तो इसमें जो रूलिंग पार्टी है उनको डरने की क्या जरूरत है? इफ देर इज एनीथिंग दे शुड एटलीस्ट क्लैरिफाई, जो बात होगी उसमें तो उसमें मतलब बैन विन करने का क्या? आई मीन वी आर इन अ प्रॉपर डेमोक्रेसी। जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हमें डेमोक्रेसी दी है तो हम उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि सभी चीजों में एक्सप्रेशन, पीपल्स एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जाता है। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो इतनी क्या मतलब डर पैदा हुआ है कि बैन करना चाहे? जो भी होगा उसमें डिस्कशन किया जा सकता है, उसमें डायलॉग किया जा सकता है। व्हाई बैन अ बुक? सो दैट इज द मेन थिंग। एंड सेकेंडली, सुप्रिया सुले जी ने जो बोला है अभी कि जो उपोषण करेंगे, तो अभी आप देखिए महाराष्ट्र में क्या क्या सिचुएशन हो रही है। महाराष्ट्र में अराजकता कितनी फैल रही है, हर चीज में जैसे अभी मेडिकल का ही देखो, जे अपना जो मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल की बात कही जाए तो उनके ऊपर अभी जैसे उन्होंने जो प्रॉब्लम की, दे डिड नॉट गिव द दे डिड नॉट फॉलो द इमरजेंसी प्रोटोकॉल, दे डिड नॉट एडमिट अ lady who was bleeding heavily and she had a twin pregnancy, and in such a case, which is an emergency protocol has to be followed, where she was not even admitted, and I think she gave around 3 lakh rupees, but their demand was 10 lakh, and because of that, unfortunately, I mean, she lost her life. And what It is is shameful, this? ma'am. It is not just unfortunate, it is disgraceful. It is absolutely disgrace. I mean, when we hear about a pregnant lady who is bleeding at that stage of pregnancy, I mean, it is an alarm bells, they start ringing, and there is a protocol to be followed. It has to be immediately. I mean, how can the people be so inhuman? They are supposed to be a charitable hospital, Dharmadaya Institute. So, I mean, where does their charity lie? एंड ये अभी जैसे बात करते करते बहुत सारी चीजें आगे बाहर आ गई है। ले लो यार। उन्होंने दे हैव नॉट इवन पेड द आई थिंक द प्रॉपर्टी टैक्स, राइट? प्रॉपर्टी, दे हैव नॉट पेड द टैक्स टू द ट्यून ऑफ 22 lakh crores, some huge amount of money they have not yet. But yeah, this is very, very strange, so because naturally, and when a small person does this, इनकम टैक्स पीछे लग जाती है, ईडी पीछे लग जाती है, and such a huge amount which can make a difference in Maharashtra. I mean, how can that? It is just like they are given time and they are given favorism. What is going on? So naturally, she also has to take a stand. We all have to take a stand. All Mahavikas Aghadi coming together has to take a stand. This is what is going on. Dr. Malhotra, Yes. Dr. Malhotra, we saw Supriya Sule ji in the parliament, in the Lok Sabha, the way she fought it out where Waqf reforms is concerned. टोटल विरोध कर दिया सुप्रिया सुले जी ने। जब प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं गरीब मुसलमान, पशमंदा मुसलमान, विधवा महिलाएं, तलाक अफेक्टेड महिलाएं और यतीम बच्चों के लिए आई विल प्रोटेक्ट देम, मेरा फर्ज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। तो वेयर इज द डिवाइड? सुप्रिया सुले जी सेज द वक्फ रिफॉर्म्स इज रॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर सेज आई एम डेडिकेटिंग माय लाइफ टू गिव एनहांसमेंट फॉर ऑल दीज पीपल। Dr. Malhotra. So what announcement, whatever he says, what is actually given till now? There are so many promises that have been made. As we saw also, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उसमें क्या हो रहा है? ये लड़की बहन में क्या हो रहा है? So promises तो ऐसे ही मतलब उड़ा दिए जाते हैं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अल्टीमेटली एंड में क्या होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वक्फ बोर्ड के मामले में there is one point which was raised by Supriya Sule ji and also Dr. Fauzia Khan, that anybody who gives a donation, anybody, so why a person has to sort of tell everybody that he is following the Muslim dharma, isn't following a dharma their own
मतलब उनका वो अपना निजी मामला होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये देती है फ्रीडम कि जो जो जिनको धर्म जो पालना है पाल सकते हैं। तो जहाँ पे डोनेशन जब देने की बात आती है, तो एज पर द आर्टिकल 21 they have the freedom to have whatever dharma they follow, and then they can give the donation. Why they have to disclose to everybody? Why they have to publicize, oh, they are following the Islam dharma? There are so many such things, and they are trying to take the land of whatever Muslim. ये तो मतलब धर्म की बात है। तो don't people have the freedom to follow the dharma in this our Ma'am, over here, I think we'll discuss that too. I think over there the point was that the Waqf board has acquired a lot of government land illegally. And in fact, I don't know whether you are aware of this, you are in Mumbai, I am in Mumbai. I think Sushil Vyas Saab is in Mumbai, Gopal Tiwari Saab of course is in Pune. हमारी जो मिनारा मस्जिद का केस है, मैडम, that's a case in point, where the Waqf board claim that the Minara Masjid is theirs. वो मिनारा मस्जिद ट्रस्ट की नहीं है, उनकी है। और वो बाद में मालूम पड़ा कि जो 88 परिवार उसके पीछे रहते हैं, माडा ने उनके लिए एक रीहैब स्कीम लेकर के आए थे, और they actually asked for the eviction of those people, 88 poor families. Of course, they've lost the case now in the High Court, but that's what the Waqf board does. But that's a separate issue. I want to come back to the Mangeshkar hospital issue. उसके बाद मैं व्यास जी के पास जाऊंगा। मैम, दिस गवर्नमेंट, ये जो आज की तारीख में जो सरकार है, इसके पहले भी और उसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी, आपको याद होगा, यू आर अ डॉक्टर योरसेल्फ मैम, a series of guidelines was laid out for every hospital functioning in Maharashtra, Mumbai and in Maharashtra, whether private or public or government or of a municipality. सुनने वाली बात है, गोपाल तिवारी जी जरा ध्यान से सुने। ये था कि कोई इमरजेंसी केस है, यू कैनॉट टर्न इट अवे, आप उसका पहले इलाज कीजिए, बिलिंग वगैरह बाद की बात होगी, सीधी बात है। नंबर 2, आयुष्मान कार्ड, सरकार की तरफ से इंश्योरेंस, ये था कि इमरजेंसी केस है, यू हैव टू सेव अ पेशेंट्स लाइफ फर्स्ट, ये सरकार का प्रोटोकॉल है मैम। तो मंगेशकर हॉस्पिटल जो है, आपको लगता नहीं है, परहैप्स देयर लाइसेंस शुड बी कैंसल्ड, द गवर्नमेंट शुड टेक इट ओवर। आप बताएं मैम। I think there is a bit of a disturbance, but there are lot of cases have come out. In fact, the doctors who have done a good service over there. In fact, I mean, somewhere I was just reading it. Even when the doctors were in the problem, in fact, they also had to pay huge amount of money to treat themselves or to treat their relatives. So it is such a it's a very big money making scam. So that has to be investigated. I mean, I mean, this is a example which was a very, this is one example that we have seen, but now so many cases are coming out from there. So basically क्या है, सरकार जो है वो काफी सारी policies करती है, ये करती है, but they lack, there is no implementation. There is absolutely no implementation. There is no accountability. So all these things have to be there. So that is a good governance. There has to be a good governance. There has to be a clean, pardarshak governance. Only then Maharashtra will go somewhere. Like let me go across to Sushil Vyas Saab. Sushil Vyas Saab, सबसे पहले ये मंगेशकर. Why am I getting this disturbance, please, in my ear? There's a lot of disturbance going around. Vyas Saab, जो मंगेशकर हॉस्पिटल का केस है ना, वैसा ही एक केस मुंबई में भी हुआ है अभी हम लोगों ने उसको अनकवर किया, कूपर हॉस्पिटल में। सर, एक वर्कर वहीं पर काम करता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इंजेक्शन के वगैरह वगैरह वगैरह, उसका इलाज किया, वहीं पर मर गया सर वो। अब वो जो बाकी वर्कर्स जो हैं बाहर धरने पे बैठे हैं। सर ये क्या है? सरकार की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं व्यास साहब, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट, बिलिंग आफ्टरवर्ड्स। पहले आप एडमिट कीजिए, उसके बाद फर्स्ट सेव द पेशेंट्स लाइफ, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो सर आपको लगता नहीं है कि ये मंगेशकर हॉस्पिटल का जो मैटर है, इसको सरकार को बहुत सीरियसली लेना चाहिए? अब आप बताएं व्यास साहब। बजाज जी। जी सर। ये दोनों घटनाएं जो कूपर हॉस्पिटल और दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल की आप बता रहे हैं, बहुत ही दुर्दैवी है, और कोई भी इसका समर्थन किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। और आपका प्रश्न जो मेरे
से है, उसका जवाब आपने खुद नहीं अपने शब्दों में दे दिया कि सरकार की गाइडलाइन है कि ये करना चाहिए, उसके बावजूद संबंधित अस्पताल के जो मैनेजमेंट है उसको नहीं कर रहे। तो अब वो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से तो दिशा निर्देश है, अब सरकार के दिशा निर्देशों को अगर अस्पताल का मैनेजमेंट नहीं मान रहा है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो जांच उसकी हो रही है। आप देख रहे हैं SIT वगैरह की वहां पे नियुक्ति हो रही है और उसकी जांच होगी, कुपर हॉस्पिटल की भी जांच, और जो संबंधित लोग हैं उन डेफिनेटली उनको कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। इसमें निश्चिंत रहें आप, और महाराष्ट्र की जनता को भी निश्चिंत रहना चाहिए। लेकिन सरकार, आपने खुद नहीं जवाब दे दिया अपनी बात में, सरकार का सर क्लियर कट गाइडलाइंस है एंड दे वर मेड ड्यूरिंग डॉक्टर आवर देवेंद्र फडणवीस टाइम। सरकार ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं, दिया है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सुशील व्यास जी, 1 2 3 4 ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और ये है, और बिलिंग नहीं होगी। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली व्यास साहब मेरी बात सुनिए प्लीज जरा ध्यान से। सर क्या है, सॉरी प्रदीप जी, क्या है कि आपने दिशा निर्देश दिया हुआ है लेकिन मुंबई शहर में भी उन दिशा निर्देशों को ज्यादातर हॉस्पिटल फॉलो नहीं कर रहे। सर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, आई मस्ट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, सर प्लीज कम डाउन वेरी हेवीली ऑन दीज हॉस्पिटल्स प्लीज। अब आप बोलें सर। मैंने वही कहा, मैंने आपकी बात पे वही कहा कि ये दुर्दैवी है और जितनी ज्यादा कठिन से कठिन इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कड़ी से कड़ी, वो निश्चित रूप से की जानी चाहिए और वो होगी भी। इस बात को आश्वस्त हो जाना चाहिए महाराष्ट्र और देश की जनता को कि अगर किसी ने भी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। Vyas ji, you are a part of the government in the state and in the center also. Or it is a fundamental duty of your government to see the rights of the minority community is protected. Today the minority community is living under fear, a constant attacks, the latest being the Waqf reforms. तो क्या आप अपने fundamental duty से you are moving away from your fundamental rights, the fundamental duty to the minority to practice, propagate and do everything as per their religion, इस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हो व्यास जी? The minorities are feeling unsafe and insecure. प्रदीप जी, भारत के सर्वोच्च संसद लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मिला के 26 घंटे की लंबी बहस इस मुद्दे पे हुई और हर तबके को, चाहे वो एक व्यक्ति भी अपने दल का या निर्दलीय चुन के आया, उसको मौका दिया गया अपनी बात को रखने का। और देश ने और पूरे विश्व ने, बल्कि मैं समझता हूं आज को टीवी का जमाना है, उसको सुना और उनके विचारों को सुना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड में जो चर्चा हुई और उसको पास किया दोनों ही सदनों ने, और बाद में भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने उसको अपनी एसेंट दी और अब वो कल से इसके कानून के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया। मुझे ये बताइए कि इसमें कहाँ क्या गलती हुई, कहाँ अल्पसंख्यकों को अपने में असुरक्षा नजर आई, अगर थी तो उनको सामने रखना चाहिए। वहां तो राजनीतिकरण हो रहा था, ये नहीं हो वो नहीं। भाई आप मुद्दों पे आइए, मुद्दों पे बताइए कि क्या गरीब मुसलमानों को और महिलाओं के लिए कोई भी काम सोचना, और उनकी संपत्ति जो आज थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर थे वो वक्फ बोर्ड वाले, क्या उस जमीन का उपयोग नहीं करना चाहिए? उस जमीन से उतना उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि उनके समाज के लिए उनका ही उपयोग हो? आज मुझे बताइए वक्फ बोर्ड के ऊपर कि पूरे हिंदुस्तान में कितनी उन्होंने कॉलेजें बनाई, कितनी मेडिकल हॉस्पिटल्स का निर्माण उन्होंने किया वक्फ बोर्ड की लेन पे, और कितने उन्होंने बेचने का काम किया। तो अगर उनके ऊपर कहीं न कहीं अंकुश नहीं होगा नियमानुसार, तो उनको कहीं न कहीं नियमों के दायरे में लाना जरूरी है। जस्ट बिकॉज दे आर माइनॉरिटी, वो इस देश के कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते। और ये कानून जो आर्टिकल 14 जो है सबको एक समान का अधिकार देता है, वो लाने का कोशिश किया गया है। अगर किसी को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो मैं करीबन, जो मेरी जानकारी है, 18 रिट पिटिशंस फाइल हुई है उच्चतम न्यायालय में, और न्यायालय जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, उसका संज्ञान लेगा, उसकी सुनवाई करेगी, और जो भी निर्णय उच्चतम न्यायालय का होगा इस देश को ही और देश के साथ हमको भी मान्य होगा। दुरुस्त बात है। और लेकिन अभी भी जैसे मैंने अभी मेंशन किया व्यास साहब, अब ये हमारा मीनारा मस्जिद का जो केस है वो सामने है सर। मीनारा मस्जिद का जो केस है, एज यू नो, मीनारा मस्जिद इज एन आइकॉनिक लैंडमार्क मॉस्क ऑफ मुंबई। मोहम्मद अली रोड पे जो मस्जिद है ना सर, जिसको मीनारा मस्जिद कहते हैं, वो मीनारा मस्जिद ट्रस्ट रन करता है। सडनली क्या हुआ, इन्होंने एक दिन देखा वक्फ बोर्ड कहता है तो हमारी है सर, वो ट्रस्ट की है। एंड द ट्राइब्यूनल, वक्फ का जो ट्राइब्यूनल है, इट रूल्ड ऑब्वियसली इन फेवर ऑफ द वक्फ बोर्ड। Now the Bombay High Court on the 15th of March has given a decision in favor of the Minara Masjid Trust against the Waqf Board. मेरा ये कहना है सर
ये वक्फ बाय यूजर जो आया था 2013 में, मतलब कि कहीं पर भी आप किसी जगह पर चले जाओ, वहां पर नमाज पढ़नी शुरू कर दीजिए, 6 महीने के बाद आप कहेंगे कि ये तो वक्फ हो गया और मैंने वक्फ कर दिया इसको, दैट इज वक्फ बाय यूजर। तो सर आई थिंक दैट इज क्वाइट फेयर। व्हाट डू यू थिंक कि इस सेक्शन को हटाना, सेक्शन 40 को, व्हाट डू यू थिंक सर? बजाज साहब, मैंने आपके पिछले डिबेट में भी कहा था कि अगर 1995 के कानून को कायम रखते तो शायद आज ये नया कानून लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। 2013 में जल्दबाजी में चुनाव को मद्देनजर रख करके जो बदलाव किए गए वक्फ बोर्ड के अंदर, उसमें ये धारा 40 वगैरह जो आई, तो उसके चलते ये 2025 में ये किया। और आपने जो मैंने कहा जिस तरह से पहली चर्चा थी उसमें आपने जो भी मीनारा मस्जिद के संदर्भ में जो बात कही, आपने ही अपनी बातों में जवाब दे दिया कि वक्फ इज डिफरेंट एंड वक्फ बोर्ड इज डिफरेंट। एक ट्रस्ट अलग है और वक्फ बोर्ड अलग है। अब सवाल जो एक पूरा एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जैसे संविधान खतरे में था लोकसभा के टाइम, इस समय ये हो रहा है कि अब अल्पसंख्यक खतरे में है, क्योंकि उसमें अल्पसंख्यकों के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग आ जाए। सर जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा वो जायज है सर, वाजिब है सवाल। नहीं, मैं मुसलमान जो है उनमें ये बात फैल गई है कि हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही है। मैं बोल रहा हूं आपको बजाज जी बात जो फैल गई तो उसको मैं वास्तविकता से तो परिचय कराना जरूरी है ना जी। दुरुस्त बात, आई एग्री विद यू। तो जब भारत के गृह मंत्री ने बड़े जिम्मेदारी के साथ दोनों सदनों में खड़े होकर कहा कि वक्फ इज डिफरेंट, वक्फ बोर्ड इज डिफरेंट, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और कल प्रधानमंत्री जी किसी सभा में बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अल्पसंख्यकों के किसी भी ट्रस्ट के अंदर हम बाहरी लोगों का कोई वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब रही वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड अगर हिंदुस्तान का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है तो हिंदुस्तान का संविधान आपके प्रति कोई कर्तव्य भी निर्वहन करने की जिम्मेदारी देता है। उन जिम्मेदारियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और आपको देखना होगा कि आप अगर अल्पसंख्यक के रूप में कुछ अधिकारों की मांग करते हैं तो अन्य लोगों के साथ भी आपको चलना होगा। तो भारत का जो संविधान है आर्टिकल 14 में सबको बरोबर लेके चलता है। अब ये बताइए कि अगर वक्फ बोर्ड की जो थर्ड सबसे बड़े तीसरे नंबर के लैंड ओनर होने के बाद उन्होंने कितनी जन उपयोगी, समाज उपयोगी और उनके ही लोगों के लिए हॉस्पिटल या कॉलेजेस बनाए? जीरो। ये विचारणीय प्रश्न। जब ये नहीं हो रहा था तो दुर्भाग्य से 95 को जो अंडू किया गया 2013 में चुनाव को सामने देखते हुए, 2013 की गलतियों को खत्म करने के लिए जिस तरह से आप देखें कि 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव लाकर इमरजेंसी वगैरह लाए गए 42-43 संविधान के संशोधन से, तो 44 संशोधन लाके मुरारजी देसाई की सरकार आई तो उस समय उसको बदला गया। तो उसी तरह से 2013 की गलतियों को अंडू करने के लिए 2025 का ये वक्फ बोर्ड कानून लाया गया। इसमें कोई वो किसी के साथ अन्याय वगैरह की बात नहीं है। गोपाल तिवारी जी, जब भी देश हित में कोई फैसला होता है और जब कॉन्स्टिट्यूशनली उसको तय किया जाता है, कांग्रेस उसको अपोज करते हैं। कांग्रेस ने आपके एआईसीसी मीटिंग इन अहमदाबाद वहां पर भी कहा कि व्हेन वी हैव मेजॉरिटी वी विल ओवरटर्न दिस ब्रूट मेजॉरिटी दैट दे गॉट वक्फ रिफॉर्म्स का। ना वक्फ रिफॉर्म्स हुआ, आर्टिकल 370 हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, जो भी देश हित में है। आपका कहना है कि आपका सरकार जब आएंगे तो आप ओवरटर्न करेंगे, आर्टिकल 370 को ओवरटर्न करेंगे, वक्फ बिल रिफॉर्म को ओवरटर्न करेंगे, ट्रिपल तलाक को ओवरटर्न करेंगे। Why are you trying to dispute whether constitution everything has been done constitutionally? गोपाल तिवारी साहब। सर, ये देश चलाना है तो अपनी मनमानी नहीं करनी पड़ती है सर, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। अगर 370 आपको करना था तो पहले वहां की सरकार पीडीपी के साथ जो आपकी थी वो बर्खास्त की, उसमें 370 में क्लियर डायरेक्शन है कि वहां की असेंबली का परमिशन, वहां के लोगों का परमिशन, जो लोगों ने चुन के दिया है, जो भी पार्टी रहो, उनका एक विधानसभा का ठहराव चाहिए कि हम मंजूर है 370 के लिए। आपने एक गवर्नर जाके, गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ पूरी असेंबली, गवर्नर एक लाइन में देता है कि 370 करो करके। अच्छा, उसके बारे में सुनो, ये सबसे पहले बड़ी बात है कि वहां की असेंबली का रिजोल्यूशन होना चाहिए और जो भी करना है वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके करना था। वो नहीं पालन हुआ। वो गवर्नर ने एक लाइन में, वो गवर्नर तो आपने अपॉइंट किया है। रही बात अभी जो वक्फ बोर्ड की जो बात कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह रिस्पॉन्सिबल। अरे कैसे रिस्पॉन्सिबल? जो पार्लियामेंट में जो 2013 और 14 जो भी रिजोल्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो क्या अकेले कांग्रेस ने थोड़ी किया?
यूनानिमसली पास हुआ। वो आपके मुख्तार अब्बास नकवी और वो शहनवाज हुसैन, इन्होंने क्या बात की उस समय, जो नेता थे आपके, सुषमा स्वराज जी और सब कुछ, उन्होंने कहाँ अपोज किया क्या? मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। पूरे बीजेपी यूनानिमसली पास होना अलग बात है, वो अमेंडमेंट अलग बात है। यहाँ 238 से 288 के खिलाफ 232 लोगों ने अपोज किया है, अकेले कांग्रेस पार्टी ने नहीं अपोज किया। अगर आप कुछ भी बोलते हो, लोगों के सामने फैक्ट तो आती है ना। 26 घंटे लोग पूरे देश दुनिया देख गोपाल तिवारी जी एक सेकंड, गोपाल तिवारी जी एक सेकंड, आपकी बात दोहरा दूं क्या? वेरी इंपॉर्टेंट गोपाल तिवारी जी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 सेकंड बनने जा रहे हो सर, 1 सेकंड, के 1 सेकंड गोपाल तिवारी जी, 1 सेकंड। जो अभी अभी आपने बात कही है बहुत ही अहम है, ये बात दोहरानी चाहिए। इसलिए आपके बिहाफ पे, अगर आप माइंड ना करें, मैं दर्शकों को ये बात बता दूं। 2013 का जो अमेंडमेंट था, व्यास साहब जरा ध्यान से सुनिए, 2013 का जो अमेंडमेंट था उसको बीजेपी ने अपोज नहीं किया था सर। अरुण जेटली साहब राज्यसभा के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, सुषमा स्वराज जी लोकसभा की थी। अब गोपाल तिवारी जी आप बोले, अब आप बोले, प्लीज कंटिन्यू। गोपाल तिवारी जी बिल्कुल सही है सर जी। आई फील प्राउड बिकॉज आप फैक्ट शोइंग जर्नलिज्म है विच इज नीडेड फॉर कंट्री। तो यही तो चाहते हैं कि भाई आप गलत बोल रहे। 2014 इलेक्शन के पहले, अरे चुपचाप थोड़ी कहीं रात के अंधेरे में कुछ बातें थोड़ी हुई है ऐसे। आप जिम्मेदार हो, आपने सही ढंग से बोलना चाहिए। और यूनानिमसली पास हुआ। और अगर आप इतना सर वक्फ बोर्ड की, आज के इंडियन एक्सप्रेस में अभी मैं बताता हूँ, ये देखो आज के इंडियन एक्सप्रेस में मैक्सिमम गवर्नमेंट एनक्रोचर इज द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं बताता हूं आपके चैनल पे जिम्मेदारी से, बंबई में अंबानी का जो एटलांटिक है वो कौन सी जगह पे है सर, पता है आपको? आप ही छानबीन कीजिए और ऑफिशियली देखिए उसमें इन्वेस्टिगेट, और क्या इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है, सही में क्या होता है देखो कौन सी जगह है वो। और आप बोल रहे हो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया। आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट का हवाला देते हो, अपनी तरफ से देते हो कि भाई 160 करोड़ का इनकम है, 12,000 करोड़ का इनकम का जो एक्सपेक्टेशन सच्चर कमेटी ने बताया। तो सच्चर कमेटी ने ये भी कहा कि मैक्सिमम लैंड एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अनेक राज्यों में गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आपने 10 साल में उसका व्हाइट पेपर निकालते थे, दूध का दूध पानी करते थे। आपने किसने रोका? और आप गलत कहते हो कि जो ये है सच्चर के वक्फ बोर्ड के ऊपर जो एक लवाद आता है, उसके ऊपर कोर्ट में रिपिटिशन दाखिल कर सकते हैं। आप बोलते हो कि हाई कोर्ट में जा नहीं सकते, कौन बोला? सर हाई कोर्ट में नहीं सर, ये कभी किसी ने नहीं बोला सर। करेक्शन, करेक्शन सर प्लीज। और सर देखो सुनो, आप मुसलमानों के इतने मसीहा बनने जा रहे हो, गरीब मुसलमानों के लिए। अरे आपका एक एमएलए का टिकट नहीं दिया पूरे देश में, और एक पार्लियामेंट में और राज्यसभा में। अभी जो एक गुलाम नबी जो राष्ट्रपति जो नॉमिनेट हुआ, वो छोड़ के उसका बिल प्रेजेंट करने के लिए आपके पास मुसलमान नहीं है, एक मुस्लिम नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? गोपाल तिवारी जी छोटी सी बात, करेक्शन। खरगे जी ने जो बताया था, जो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप है मुसलमानों के बारे में, जो 5-4 स्कीम है, वो सब बंद हो गए। जो गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए वो चारों स्कीम बंद हो गए। आपने जो माइनॉरिटी के लिए बजट रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो बजट भी आप पूरा खर्च नहीं कर पाए। अरे आपको वो जगह अपने दोस्तों को देना है। और एक बात रही, हर एक की धार्मिक भावना, उन्होंने अपने जो मुसलमान यहाँ रह गए, और देश दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की मुसलमान है, तो आपको उनको सम्मान करना चाहिए। जमीन है, अरे भाई अपने रिलीजन की अपनी प्रथा है। मैं कोई चंदा देता हूँ भगवान के लिए, उसका मंदिर बनवाने के लिए, और मुस्लिम अपनी जमीन भगवान के, अल्लाह के नाम के डोनेट करते हैं, तो उनकी आस्था का विषय। ये आप नॉन मुस्लिम को आप लेंगे तो आप तिरुपति और ये देवस्थान के ऊपर। तिवारी साहब, फडणवीस साहब ने कहा कि 2000 सी बात है, 2000 से लेकर 2014 तक जिन लोगों ने
वकफ को ठगा है, प्रॉपर्टीज यूसर्व किए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल करूंगा, किसी को बख्शूंगा नहीं। वेरी सीरियस स्टेटमेंट बाय देवेंद्र फडणवीस सीएम। तो क्या ये पूरे कांग्रेस के जमाने में हुआ था ये सब चोरी जितना हुआ? What does he want to say? That I'm going to file criminal cases against everybody who serve वकफ प्रॉपर्टीज? तिवारी साहब, अरे तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का मैक्सिमम एनक्रोचमेंट है, आप कीजिए, हम तो स्वागत करते, कीजिए ना। अगर आपके पास ये आप मतलब ऐसे क्यों बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड और मुस्लिम लोगों की प्रॉपर्टी छीन रहे हैं? अरे उनका मतलब एक अलग तरीका है उनका। अगर आपने तो गोल्ड बॉन्ड के नाम से तिरुपति देवस्थान, और जो 60 साल में नहीं हुआ, और ये देवस्थान हिंदू देवस्थान का गोल्ड बॉन्ड के रूप में आपने सोना जमा करवाया, आप क्यों नहीं कर रहे उसके बारे में? और उसकी भी कॉस्टिंग कितनी होगी? सब जगह हिंदू देवस्थान का सोना है, जमीन जायदाद है, सब जी कुछ जी है। जी जी ये आप कोई एक अच्छा रिलीजन है, उनके प्रति आप उनके ऊपर एक एनक्रोचमेंट ही कर रहे हो, ये हिसाब से। अभी सर गोपाल तिवारी जी, व्यास जी के पास जाएं, और उसके आपकी इजाजत हो तो एक्शन लेगा। आपकी इजाजत हो तो मैं व्यास जी के पास चले जाऊं। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, आई एम कमिंग बैक टू यू विद जस्ट अ मिनट। व्यास जी, पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं सबके सामने, जो अपील की बात हुई थी, जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आता था, अब नहीं, अब तो नया लॉ आ गया है, जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आता था, अपील ले ओनली इन द हाई कोर्ट, नॉट इन द सिटी सिविल कोर्ट। नाउ इट लाइज इन द सिटी सिविल कोर्ट। जी, अब आप सुशील व्यास जी, आप जवाब मीनारा मस्जिद के लोग हाई कोर्ट गए, वहां रिट पिटीशन में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बिकॉज दे हैड द रिसोर्सेज। गलत नैरेटिव तो लोगों के सामने सच्चाई के रूप में आ गया। सर, दे हैड द रिसोर्सेज, they had the resources sir, which is why। हाँ, अब आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं ना। देखिए गोपाल भाई सर, सिटी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते थे, आप जा सकते भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अपील में जा सकते हैं आप। गोपाल भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं सुनता रहा, अब मैं बोल रहा हूं तो आप भी सुनिए जरा, सुनने की थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूं, उन्होंने जो बात रखी उसके बारे में। शायद देश की जनता यही कमजोरी समझ गई है आप लोगों की, कि आप सुन नहीं सकते, खाली बोलना जानते हैं। आप थोड़ा सा सुन लीजिए, इतनी देर सुन रहे हो ना, बिल्कुल, है ना। तो अब दूसरी चीज, जैसे बजाज जी ने कहा, आपने एक बात क्लियर हो गई कि ट्रिब्यूनल इज फाइनल अथॉरिटी, ऐसा नहीं है। आप सब जिस जरूरत होने पे आप रिट पिटीशन के माध्यम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से आपको मिला। अब दूसरी चीज आपने कहा 2013 में बीजेपी ने समर्थन दिया, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तत्कालीन सरकार, अब किसकी थी, क्या थी, किस दल की थी, मैं नहीं कह रहा हूं। तत्कालीन सरकार को यह लगा कि हमें 1995 के कानून में कुछ आमूल परिवर्तन लाने चाहिए, और उन्होंने सदन के अंदर अपनी वो जो एक उद्देश्य जो होता है किसी भी कानून को लाते समय, जो एक ओपनिंग रिमार्क होता है मंत्री द्वारा, उन्होंने कहा, और विपक्ष को लगा कि हमको सरकार के इस इरादे के साथ चलना चाहिए, विपक्ष ने एक मत से उस अमेंडमेंट को पास किया। तो गुनाह कर दिया क्या? आप कह दीजिए गुनाह कर दिया। अगर सरकार के द्वारा सदन में देश हित में कोई देखिए गोपाल भाई, मेरे आप बोल रहे तो सुन तो लीजिए। अगर बीजेपी ने मान लिया 2013 में, यह हकीकत है, समर्थन किया, तो क्या गलत किया? क्या आप कह दीजिए कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने उसको, जो कांग्रेस के इस प्रस्ताव को समर्थन देकर देश विरोधी काम किया? बोल दीजिए आप, एज ए कांग्रेस प्रवक्ता टीवी पे बोल दीजिए। आप ये तो बात नहीं बता रहे इसलिए बोला हूं। नहीं, आपने कहा, अबे आप विषय को देखिए गोपाल भाई, विषय से भटकिए मत। आप हमको आरोपी बताना चाह रहे थे समर्थन करने के लिए, आप हमें गुनाहगार बताना चाह रहे थे, बता दीजिए गुनाह था क्या, बोल दीजिए गुनाह था क्या। तो किसी भी देश की चुनी हुई सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाए, गोपाल तिवारी जी, अगर कोई गोपाल तिवारी जी, एक सेकंड सर, कोई कानून पास, सुशील व्यास जी, मे आई क्लैरिफाई, सुशील व्यास जी, मे आई क्लैरिफाई सर, मे आई क्लैरिफाई, the 2013 amendment was brought in, there was hardly any discussion on it, let me tell you. Yes, I am saying डिस्कशन हुआ ही नहीं, interest of the country we agreed. सर डिस्कशन हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा चलो जाने दो, चलो करिए, हो गया, that's it, that's what happened, there was no discussion। फैलाते हैं ना कि ये जरा आप उसको बंद कर दीजिए। नैरेटिव हमने फैला रहे, आप बोल रहे हैं नैरेटिव क्यों? ओके सर, ओके, अच्छा, गोपाल जी, आई हैव टू गो टू डॉक्टर मल्होत्रा आल्सो। लोकसभा चुनाव में भी फैसला दे दिया
कि गलत नैरेटिव का क्या उत्तर होता है? I want to ask गोपाल जी बार-बार जो कांग्रेस कांग्रेस कह रहा को है कि 100% कांग्रेस बनाया एंड और बीजेपी को कांग्रेस 30% एंड घटाया। इंडिया अलायंस जो अच्छा, गोपाल भाई आर्टिकल बताइए, न- आपके शीर्षक नेताओं ने तिवारी जी- बोर्ड के बहस में हिस्सा क्यों नहीं लिया? तिवारी राहुल जी- गांधी जी, Most important प्रियंका question. गांधी जी या Most अन्य important. बड़े नेताओं ने राज्यसभा में वोट में हिस्सेदारी क्यों नहीं जो की? जो या इस मुद्दे चर्चा में जो हिस्सेदारी मुद्दे क्यों नहीं की? रखने थे, वो जो मुद्दे रखने थे, वो गोगाई साहब ने, खरगे साहब ने, इमरान प्रतापगढ़ी ने और डॉक्टर समीर उन्होंने रखे और तो सैयद उसमें क्या, नासिर जो हुसैन ने। मुद्दे उन्होंने मतलब रखने थे वो रख दिए। लेकिन सुशील व्यास जी और गोपाल तिवारी जी एंड डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, प्लीज लिसन टू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. Gaurav Gogoi Saab, he gave a wonderful reply. It was a very, very good reply, by the way. In the Lok Sabha, I was very impressed. He had done a lot of research and so on and so forth. लेकिन गौरव गोगोई साहब ने एक चीज बोली, गोपाल तिवारी जी, जरा ध्यान से सुनिए. उन्होंने कहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि संशोधन की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं उसमें संशोधन की जरूरत है. ऐसा बोला गौरव गोगोई साहब ने. तो गोपाल तिवारी जी, जब संशोधन की जरूरत थी तो आप उसको अपोज क्यों कर रहे हैं? आप बताइए ना सर, प्लीज. गोपाल तिवारी जी, ये गौरव गोगोई साहब के शब्द हैं कि इस लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत है. संशोधन के प्लीज बोलिए सर, बोलिए. संशोधन के नाम से सही संशोधन और जो होना चाहिए वो आप उनका हक छीन लेते हो और आप उसके ऊपर नॉन मुस्लिम लोग डालते हो और आपका मोटिव सही नहीं है, आपका मोटिव गलत है. वो अगर आप पहले आप देखो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है वक्फ बोर्ड के ऊपर. आप ऐसा नहीं कि नहीं, पहले जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था वो था, अभी आप रिटायर्ड जज को बिठाएंगे. अरे ये कौन सी बात है? जो बहस हुई है वो सब बहस में सब मुद्दे सामने आए हैं, वही करना चाहिए था. तो आप पहले का वक्फ बोर्ड होते रहते हुए आपने कहीं अगर व्हाइट पेपर निकालते, अगर दूध का दूध पानी का पानी होता कि कितने जमीन महाराष्ट्र में, बताइए आप मेरे को, महाराष्ट्र में बताइए ना. कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कौन कौन सी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या ली और या वक्फ बोर्ड की जमीन गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों ने कितने लोगों ने हत्या है, उसका सर्वे नंबर और उसके साथ आजकल गूगल मैप से तो सब कुछ पता चलता है. बताइए आप. तिवारी साहब गोपाल कुछ तिवारी नहीं, साहब, हिंदू मुस्लिम करते हो और केरल- मुस्लिमों का तुष्टीकरण की राजनीति करके कांग्रेस को बदनाम करते हो. राहुल गांधी जी, जो मेन क्राइसिस है, जो सर अभी आपने बोला था हॉस्पिटल के बारे में, गवर्नमेंट की भी कुछ ड्यूटी है सर. ये प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे आप और उनके तरफ से आप एक्सपेक्टेशन करेंगे, आप खुद की जिम्मेदारी लोगों के आरोग्य हेल्थ के प्रति नहीं निभाएंगे, हेल्थ बजट नहीं खर्च करेंगे, तो क्या होगा? आपको चुन के काय के लिए दिया है? गोपाल तिवारी जी, कमिंग बैक टू राहुल गांधी जी, गोपाल तिवारी सुनिए, गोपाल जी सुनिए, आप राहुल गांधी जी, मुस्लिम समाज कंप्लीट, लेट मी. हाँ प्लीज गो अहेड प्रदीप सर. जी 10 मिनट में, प्रदीप जी थोड़ा 30 सेकंड दीजिए. हाँ बोलिए. प्रदीप जी, हाँ, बोलिए. 1985 में 7th फिफ्थ ईयर प्लान, 7वीं पंचवार्षिक योजना में राजीव गांधी ने कहा था 1000 लोक संख्या जो अर्बन की होगी उसके पीछे वन गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बेड चाहिए. पुणे की पॉपुलेशन है 40 लाख, तो पुणे में 4000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेड चाहिए सर. मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूं इंदिरा जी के नाम से हॉस्पिटल होने के लिए यहाँ पे पुणे में. और 2010-14 के बाद इन्होंने प्लानिंग कमीशन बर्खास्त कर दिया. और क्या हुआ? अभी आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी है आपके पास? अरे जब BSNL MTNL अगर अच्छा रहेगा तो एयरटेल और वोडाफोन कंपटीशन कर पाएंगे, और BSNL ही जाएंगे तो मोनोपोली किसकी होगी? जहां वैसे प्राइवेट जो एयरटेल है, वोडाफोन है, इनकी होगी, वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल की मोनोपोली होगी. गोपाल जी, आपकी भी जिम्मेदारी है. 1000 लोगों के पीछे एक गोपाल जी, बहुत गवर्नमेंट crucial- मिनिमम रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट let's हॉस्पिटल come की, back वो to the तो पूरी subject, करनी sir. गोपाल चाहिए. जी सुनिए ना, मोस्ट क्रूशियल है कि आप मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हो. कांग्रेस इज बिकमिंग द हमदर्द ऑफ मुसलमान.
बट राहुल गांधी जी एक वर्ड नहीं बोला वकफ के बारे में इन द पार्लियामेंट. प्रियंका गांधी was absent during the entire proceedings. Absent during the entire proceedings. क्या केरल के क्रिश्चियन एसोसिएशन, बिशप एसोसिएशन, चर्च एसोसिएशन जो खुलेआम इस बिल का सपोर्ट किया, क्या ये वजह था बिकॉज प्रियंका गांधी फ्रॉम वायनाड, क्या उनको डर लगा कि क्रिश्चियन वोट्स आपसे दूर चले जाएंगे, इसलिए दोनों राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में ना एक शब्द बोले एंड दे वर एब्सेंट. व्हाई वाज इट? बिकॉज द होल कंट्री वाज लुकिंग टुवर्ड्स एलओपी. इट्स अ वेरी रिडिकुलस स्टेटमेंट एंड एलिगेशन, और जो आरोप है हास्यास्पद आरोप है. जो हमारी बात है, कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम अपनी बात रखी है, अपनी जिम्मेदारी रखी है, बार बार रखी है. कोई नेसेसरी नहीं कि वही बात उन्होंने कहनी चाहिए. जो उनके उपनेता है गौरव गोगोई ने उन्होंने रखी, जो भी कांग्रेस के जो भी सांसद है, और बेसिकली हमने फोकस किया कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी के जो सांसद है उन्हें बोलना चाहिए. और आपके पास तो मुस्लिम है नहीं कोई. अरे वो बात रखने के लिए, समर्थन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए भी नॉट अ सिंगल पार्लियामेंट मेंबर आपके पास बीजेपी के पास नहीं है. इट्स अ शेमफुल थिंग. राहुल गांधी जी इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन. गोपाल तिवारी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कुछ बोले नहीं वक्फ बिल के ऊपर पार्लियामेंट में. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मुस्लिम समाज भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं. बहुत लोग लिख रहे हैं कि व्हाई वाज राहुल गांधी, व्हाई डिडंट ही स्पीक इन द पार्लियामेंट? नहीं, कोई लिख नहीं रहा. ऐसे वो बीजेपी का एजेंडा चला रहा है. देखो, हमें कोई ऐसा नहीं, हम तो सबको साथ और कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाले लोग हैं. कोई एक धर्म. So what about the Christians of Kerala, sir? और इसीलिए जो बातें रखनी थी हमारे सांसद लोगों ने रखी. अभी जो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लेना है, कांग्रेस पार्टी खुलेआम ले रही है. हम वही, अरे एक अकेली इंदिरा गांधी थी जब उन्होंने उस समय लिखा था कि जितना भी गवर्नमेंट ना एनकरेजमेंट किया है वक्फ बोर्ड की जगहों पे वो खाली कीजिए, तो किया ही नहीं. अरे सर आप ये बताइए. चलिए गोपाल तिवारी जी, ये तो बात हो गई. एक्सप्रेस में मैं स्टेटमेंट बता जी जी, दुरुस्त बात है. अब मैं एक सवाल पूछ लूं सर आपसे, छोटा सा उसका जवाब चाहिए, उसके बाद आई हैव टू गो टू डॉक्टर मल्होत्रा बिकॉज शी इज नॉट स्पोकन इन अ लॉन्ग टाइम. Sir, the Bishops' Conference in Kerala, in Karnataka, in Telangana, even in Andhra Pradesh, and the All India Bishops' Conference, सब लोगों ने इस बिल को सपोर्ट किया है. तो क्या ईसाई जो हैं वो एंटी मुस्लिम है सर? गोपाल तिवारी जी. सर, जिनको पॉलिटिकल प्रेशर हो या पॉलिटिकल नेसेसिटी चाहिए बीजेपी की, उन्होंने किया होगा. सर तो केरला चर्चेस हैव बीन क्लेम्ड. मैं बताता हूँ. सर केरला, सर पूरी बात सुन ले सर, आपकी यही आदत है सर. सर प्लीज गोपाल तिवारी जी, केरला में देर आर ओवर 30 churches, well-known churches, which have been claimed by the Waqf board as their land. तमिलनाडु में 1500 साल पुराना शिव मंदिर, इट हैज बीन क्लेम्ड बाय द वक्फ बोर्ड एज देयर लैंड. सर अब आप सारे ईसाइयों को तो नहीं कह सकते कि ये लोग एंटी मुस्लिम हैं. अब आप बताइए सर, बोलिए गोपाल तिवारी जी. नहीं सर, इसके प्रति जो भी है वो वास्तवता के साथ डिसीजन होना चाहिए. दुरुस्त बात, आई एग्री विद यू. अगर वक्फ बोर्ड की सुनो, वक्फ बोर्ड की जगह है, शिव मंदिर है, उसके ऊपर तो 1500 साल पुराना शिव मंदिर वक्फ का हो गया. ट्रिब्यूनल किसने वक्फ को दिया? सर इस्लाम को 1200 साल हुए हैं, ये तो 1500 साल पुराना शिव मंदिर है. ये किसने वक्फ कर दिया कम्युनिटी को? ये बताइए सर. उस वक्त तो मुस्लिम थे ही नहीं, तो ये 1500 साल पुराना शिव मंदिर वक्फ का कैसे हो गया? आप बताइए सर. ये तो नोट कैसे हो गया? सर देर आर थोड़ी बोल रहे हैं कि हो गया करके. सर देर आर 30. सर इट इज अ रजिस्टर्ड केस. वक्फ बोर्ड तो हमारी जुडिशरी है क्या? नहीं, न्याय व्यवस्था है ना सर. तो उसी को अभी लेने दो ना सर. बिल्कुल दुरुस्त बात. आई एग्री विद यू सर. यस सर, आई एग्री विद यू. कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, ना जस्टिफाई कर रहे. करेक्ट. हम बोल रहे जो जुडिशरी से होता है वो होने दो. तो इसीलिए जो राम मंदिर का मसला था वो बिकॉज ऑफ ये कांग्रेस ने आजादी दिलाई देश को, तो हमारे पास जुडिशरी एस्टेब्लिश हुई. नहीं तो और 500 साल राम मंदिर नहीं बन सकता था. फॉर योर इंफॉर्मेशन. करेक्ट है सर, आई एग्री विद यू सर. उसमें कोई डिबेट नहीं है. हमारा भारत का संविधान बना, न्यायालय बना,
कोर्ट बनी, जुडिशरी बनी, I agree with you, जुडिशरी को हक आया कि Wonderful. इसके प्रति फैसला Sir, दे। you are a wonderful spokesperson for the Congress. The Congress should be proud that they have somebody like you. I agree with you. Sir, Section 40 of the Waqf Board, Section 40 of the Waqf Amendment which came in 2013 brought in something called, जरा ध्यान से सुनिए सर, Waqf by user. वो निकाल दिया गया है और साथ में अब अपील जो है ट्राइब्यूनल के डिसीजन के बाद अब सिटी सिविल कोर्ट में भी रहेगी ताकि लोगों को सहूलियत हो सके, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट फाइल अ रिट इन द हाई कोर्ट सर. नाउ मे आई गो टू डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा प्लीज. डॉक्टर मल्होत्रा, सर, इसमें मैं एक क्लियर सर आई कम बैक टू यू सर. सर मैं आता हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं. डॉक्टर मल्होत्रा इज नॉट स्पोकन फॉर अ लॉन्ग टाइम. डॉक्टर मल्होत्रा, व्हाट वुड यू लाइक to be done as far as the Mangeshkar Hospital is concerned and our Cooper Hospital here in Juhu is concerned in Mumbai? Ma'am, आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस नीड टू बी फॉलोड टू द टी? और अगर मान लीजिए कोई भी हॉस्पिटल इसमें विलंब दिखाता है या नहीं करता है जिससे पेशेंट की मौत हो जाती है, आपको लगता नहीं है मैम कि एक क्रिमिनल केस होना चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ? Definitely, आप बताइए 100%. प्लीज. As I said earlier also, that the implementation of these laws have to be very proper. There has to be somebody who holds everybody accountable. They have to hold the management accountable, and this has to be done. आप इतने जोरों से वक्फ बोर्ड वगैरह ये सब बातें गवर्नमेंट ले रही है, कर रही है, तो व्हाई नॉट द हेल्थ ऑफ द पर्सन विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर क्यों नहीं जोर दे के, मतलब जो बोल रहे हैं कि पॉलिसीज है, ये है, लॉज है, तो उसका व्हाई इज इट नॉट फॉलोड प्रॉपरली? तो यहाँ पे कहीं तो जो पेपर पे लिखा है एंड जो प्रैक्टिकली हो रहा है उसमें बहुत तफायत है. तो दे हैव टू यू नो, कोई अच्छे ऑफिसर्स होने चाहिए जो बार बार जाके वहां देखे, सबको अकाउंटेबल, सब स्तर के लेवल्स, ऑल द लेवल्स शुड बी चेक्ड ऑल द टाइम. What is happening? How much is the medical? Whether the medicines is getting, whether the medicines are a fresh medicine, whether जो जूना outdated medicine दे रहे, क्या दे रहे हैं? अभी लगता है कि उधर उन्होंने हॉस्पिटल में वो लॉ आ गया कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं कोई भी आएगा तो हम लोग पहले उसको इमीडिएटली एडमिशन दे देंगे करके. Now they have changed it. उनके जो मैनेजमेंट पर्सन है कौन, कालकर also, I forgot the name, but he said कि now no we will not hold as hold the treatment. ये उन्होंने अभी बताया. तो ये सब चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए. साथ में बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स है, उसकी भी स्तर प्रॉपर होना चाहिए. ये तो हमने बार बार डिस्कस किया है कि हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती है, सीटी स्कैन नहीं होता, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं होते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशंस के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है. तो ये कब तक चलेगा? आप देखिए अब्रॉड वगैरह में जहाँ जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज होती है वो कितनी अच्छी होती है. तो जो आप पेपर पे डॉक्टर मल्होत्रा नहीं कि प्रैक्टिकली वो जो होना चाहिए. अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग बिग लॉज, बिग पॉलिसीज? डॉक्टर मल्होत्रा, आज सुप्रिया सुले जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बारामती खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में धरने पर बैठी है. सुप्रिया सुले बोले कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं 1.5 किलोमीटर का रोड कॉन्क्रीटाइजेशन करना चाहती हूं और ये नहीं हो रहा है. एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके पार्टी के शायद वेरी रिस्पेक्टेड और पार्लियामेंट में आउटस्पोकन पार्लियामेंटेरियन आज धरने पर बैठे कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कराने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 किलोमीटर रोड कॉन्क्रीटाइज. तो व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? मींस क्या बारामती में कोई सुनवाई नहीं है? यानी इतने टॉप के लीडर्स है, शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले जी, इनका कोई सुनने, न कोई ब्यूरोक्रेट सुनने, ना प्रशासन सुन रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की छोटा सा काम के लिए भी उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है. व्हाट इज हैपनिंग डॉक्टर मल्होत्रा? ये पर्पसली क्या अपोजिशन को दबाया जाता है? ये पर्पसली उनकी जो बात सुनी नहीं जाती है. बेसिकली गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो लोगों के लिए जो फैसिलिटी है वो सब बातें उनको सुननी चाहिए, वो सब बातें उनको करनी चाहिए. अदरवाइज क्या बात है कि बोले कि हाँ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, हम बाहर से ये फैसिलिटी ला रहे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट उसका फायदा लोगों को नहीं मिलेगा तो उसका क्या फायदा है?
एंड व्हाई इज इट दैट इन एवरी केस, जो लीगल मैटर्स हो, महिलाओं के मैटर्स हो, फार्मर्स के मैटर्स हो, यूथ के मैटर्स हो, सब में गवर्नमेंट इतना रेजिस्टेंस क्यों दिखाती है? हर चीज में रेजिस्टेंस दिखती है। हमारे लोग जो है, महाविकास आघाड़ी इतनी सारी अच्छी डिमांड्स करते रहते हैं लोगों के लिए, मगर हम देखते हैं कि कुछ भी डिमांड कंप्लीट नहीं हो रही जी। है। आपको तो पता है जो भीड़ में हो रहा है, अभी क्या उसमें आगे हो गया, वो जो जिसको कस्टोडियल डेथ हो गई, वो तो मैटर कहाँ गया पता ही नहीं, क्या वो मैटर Nobody is talking about it. इसके बारे में कितना बोल रहे थे। तो नथिंग, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, तो कैसे चलेगा ऐसे? But by the way, this is just for the information of our viewers. Supriya Sule ji has just broken her fast on assurance from officials that work will begin within 15 days. 15 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा और मानसून के पहले पहले पूरी सड़क बन जाएगी। ये अभी अभी उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया है मैम। व्यास जी, can I ask you, व्यास जी, महायुति is turning out to be, लोगों का कहना ऑपोजिशन करना है, टोटलिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज आप में आ गए हैं व्यास जी। यू हैव बिकम अ डिक्टेटर। हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर फाइल करो अक्षय शिंदे वाला मैटर में, न एफआईआर फाइल करा न कोई अरेस्ट हो रहा है। कुणाल कामरा के केस में आपने टोटल डिक्टेटोरियल कि कोई हमारे लीडर के खिलाफ बोलेगा उनको हम महाराष्ट्र में आने नहीं देंगे, ये 3rd डिग्री होगा, तरह तरह के। नो, आर यू बिकम अ डिक्टेटर? दिस काइंड ऑफ टेंडेंसीज आर कम विद इन यू, दैट इज द एक्यूजेशन अगेंस्ट यू। व्यास जी, नाम्बियार जी, मैं आपकी बातों का जवाब दूं उसके पहले मैं बहस में कुछ चीजें सुन रहा था जी, मैं बोलिए। उनको हल्के से एक बिल्कुल, थोड़े समय में उसका जवाब देना यस चाहता यस हूं। यस यस। गोपाल भाई कुछ बोल रहे थे, तो गोपाल भाई 232 वोट मिले हैं लोकसभा में इस वक्फ बोर्ड के इस एक्ट के खिलाफ। तो क्या इंडिया अलायंस की संख्या 232 ही है? नंबर 1। 95 वोट मिले, 95 राज्यसभा में। क्या आपके कुछ कदावर नेता, मैं जिनका नाम लेकर के विवाद बढ़ाना नहीं चाहता, आप जानते हैं वो मतदान के लिए एब्सेंट क्यों हो गए? उसका जवाब भी देश को देना चाहिए। अब रही बात, अभी हमारी बहन कुछ बोल रहे थे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो 30 जून 2022 के पहले महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी महाराष्ट्र में, उसमें आप दोनों की पार्टियां सत्ता में थी। क्या उस समय ये स्थितियां परिस्थितियां अलग थी? क्या उस समय ये जरूरतें नहीं थी? क्या उस समय ये स्थिति जनता के बीच में नहीं थी जिनका जिक्र आज होकर के वर्तमान सरकार को आरोपित किया जा रहा है? तो ये प्रशासन अलग काम करता है, शासन अलग काम करता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो नियम कानून है, दिशा निर्देश है, उसको अगर ढंग से पालन नहीं हो रहा, इस बात को मैंने मेरे ओपनिंग रिमार्क में सहमति हुई, लेकिन मात्र वर्तमान सरकार निकम्मी है और ये है, तो भाई 2.5 साल पहले तो आप ही लोग सत्ता में बैठे हुए थे, आप लोगों ने क्या कर दिया? क्या उस समय ये स्थितियां नहीं थी? अब मैं आपकी बात पे आता हूं। नाम्बियार जी, मैं आपके पिछले डिबेट में भी आया था, मैंने आपसे इसी कुणाल कामरा के बारे में कहा कि मुझे आप बताइए कि आप आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के बारे में तो कहते हो, उसके थोड़ा आगे चले जाइए तो आप संवैधानिक ड्यूटीज जो हमारी हैं उसको भूल क्यों जाते हो? आप संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी ड्यूटीज हैं उसको भूल क्यों जाते हो? और उनके ऊपर जो 356 354 जो एनएसए जो नया कानून है उसके बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसमें क्या कहा गया? आप उकसाने का काम करोगे, जनता के बीच में जाके शांति भंग करने की कोई वाक्य का दोहराओगे, इस तरह का कोई सार्वजनिक से बयान दोगे, तो आपको कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा। अगर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था रखने के लिए अगर कोई भी आदमी बेलगाम बेछूट कोई बोल रहा हो और किसी के प्रति भी कोई भी व्यक्तिगत, आज मान लीजिए एकनाथ शिंदे थे, कल शरद पवार भी हो सकते हैं, परसों राहुल गांधी भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उठेगा कुछ भी बोलेगा और असभ्य भाषा में बात करेगा तो उसको कहीं कहीं रोकना चाहिए। देश का संविधान आपको अधिकार देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप बेलगाम बोले। उसको कहीं न कहीं रोकना कानून के अनुसार भी है और सामाजिक स्तर पर भी है, और इसमें कोई तानाशाह की बात नहीं है। तानाशाह जब होता अगर उसको उसी समय जाकर के दबोच लिया जाता। हमने उनको मौका दिया, वो पहले मद्रास हाई कोर्ट में गए, वहां से स्टे लिया, 7 तारीख तक का स्टे उन्होंने एक्सटेंड किया 17 तारीख तक। अब वो मुंबई हाई कोर्ट में आए, उन्होंने पिटीशन फाइल की है, उसकी अगले हफ्ते उसकी सुनवाई है। तो न्याय प्रक्रिया अपना काम कर रही है, हमने रोका नहीं उनको न्याय प्रक्रिया में काम करने से। और मुंबई पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करे, ये तो नहीं कि इन्वेस्टिगेशन के पहले जाके उनको घर से दबोच के ले आए उठा के। तो उनको भी एक मौका दिया, भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार अपना बात को रखे, वो रखेंगे, जो भी न्यायपालिका जो निर्णय लेगी होगी। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आप कुछ भी बेलगाम बोले उसको भी सहन नहीं करना चाहिए, चाहे हम हो या वो हो या वो। आज मेरा नेता है, कल आपका नेता भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए।
तो सुशील व्यास जी बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से अक्षय शिंदे वाले मैटर में कहा कि देयर इज नो अर्जेंसी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सब लोग ने सारा, जब हुआ बदलापुर एनकाउंटर द होल स्टेट वाज हैप्पी, महिला खुश थे, सब लोग खुश थे कि तुरंत, बट कोर्ट आदेश दे रहे हैं व्यास जी, क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। नाम्बियार जी, मैं उस दिन भी आपके डिबेट में था, बदलापुर की जब घटना हुई और लोग, हजारों लोग वहां पे बदलापुर के स्टेशन पे खड़े थे जी, और पत्थरबाजी हुई थी। क्या मांग थी उनकी और कौन थे वो, किस दल से लोग थे वो, क्या मांग थी उनकी? आप मुझे याद दे, आप बताइए क्या मांग थी। मैं मेरे मुंह से कह करके उस बात को जस्टिफाई नहीं करना। क्या मांग थी उनकी? अभी की अभी फांसी दी जाए, अभी का अभी उनको लाया जाए। तो क्या कौन सी न्याय व्यवस्था में आप मांग कर रहे थे भाई? कौन सी न्याय व्यवस्था में मांग कर रहे थे? और फिर मान लीजिए अगर कोई चीज हुई है, वो उसका एसआईटी गठित हुई, एसआईटी की रिपोर्ट आई, उच्च न्यायालय के सामने मामला प्रलंबित है, उन्होंने उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि एफआईआर फाइल हो, एफआईआर फाइल होगी, संबंधित जो भी पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो कानून के अनुसार सारी चीजें प्रक्रिया चल रही है। अब कहीं उस प्रक्रिया को रोकने का काम वर्तमान सरकार ने कहीं किया हो तो हम दोषी हैं। हमने उस न्यायिक प्रक्रिया को तो रोका तो नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया अगर रुकती, हम उनका गला घोटते न्याय का, तो आप हमको दोषी करार दे सकते थे। लेकिन मैं उनसे, जो हमारे ऊपर अंगुली उठाने वालों से पूछना चाहता हूं कि बदलापुर में जो हजारों की तादाद में आप लोग खड़े थे, अपने अपने दल का एफिलिएशन भी देख लें और आपकी मांग जो चिल्ला चिल्ला के आप कह रहे थे उसको भी याद कर लें। तो सुशील व्यास जी, एक छोटी सी बात आपके सामने है सर। अभी हाल ही में एमएनएस के बड़े प्यारे नेता हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, राज ठाकरे साहब, उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे मराठी नहीं बोलता उसको, उसके साथ जो भी करो वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद एमएनएस के वर्कर्स ने जाकर के काफ़ी वॉचमैन को पीटा, एक बेचारे बैंक मैनेजर को भी जाकर के मारपीट दिया, सब कुछ दिया। अब जाकर के उन्होंने वो डिमांड विड्रॉ करी है उदय सामंत जी के उनके पास जाने के बाद। लेकिन जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है सर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी व्यास साहब? बजाज जी, जहां तक मेरी जानकारी है कार्रवाई हो भी रही है, कार्रवाई हुई भी है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई। और सम्माननीय राज ठाकरे जी ने भी रियलाइज किया कि वो जो कह रहे हैं, जो कदम उन्होंने उठाया शायद उनको नहीं उठाना चाहिए, इसलिए उन्होंने फिलहाल उसको रोका भी है, खुद ने रोका है सार्वजनिक बयान देके। तो अब उस पर ज्यादा मैं कहना ठीक नहीं है। उन्होंने खुद ही जब उस अपनी एहसास उन्होंने कर लिया कि इस चीज को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहिए इस आंदोलन को, तो उन्होंने रोक दिया है फिलहाल। कहना ठीक नहीं है। जो भी घटना है आप जो बता रहे हैं बैंक मैनेजर की या एक एक्सक्यूज मी कहने पर किसी को मारपीट की, उस पर एफआईआर हुए हैं, उस पर कार्रवाई होगी और हो भी रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये राज ठाकरे साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं दोबारा बोल दूं, और दूसरी तरफ एक कुणाल कामरा हैं, तो कुणाल कामरा साहब ने जिस होटल के अंदर ये स्टैंड अप कॉमेडी करी, उस होटल के हॉल को जाकर के लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, तोड़ दिया उसको। क्योंकि ये राज ठाकरे हैं इसलिए आप इसके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते। तो द सेम सर, मैं बेगिंग योर पार्डन, why don't you mete out the same treatment to the MNS workers? बोलिए सर। बजाज जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सर्वोच्च नेता एकनाथ राव जी शिंदे ने सार्वजनिक बयान का कहा कि उनको इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। और आपको मैं याद दिला दूं, वो हमारे सम्मानित पदाधिकारी थे, लेकिन उनको भी अन्य किसी आरोपी की तरह रात को 3:30 बजे जाकर के शिवसेना के उन नेताओं को घरों से पुलिस पकड़ के लाई है और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अगर हम हमारे उन नेताओं को बचाते तो आप हम पे आरोप लगाते। अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया तो कानून ने उनके साथ भी वही व्यवहार किया जो किसी अन्य आरोपी के साथ किया। बताइए, हमारे वो जिम्मेदार 3:30 बजे रात को जाकर के शिवसेना के 13, 12, 14 जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया कि नहीं किया पुलिस ने? किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। अगर हम नहीं और 12 घंटे बाद उनको बेल मिला तो होता क्या? तो 12 घंटे बाद उनको बेल मिला, करेक्ट, उसमें तो दो राय। बेल न्यायपालिका के हाथ में है, बेल हमारे हाथ में नहीं है। न्यायपालिका हमारे हाथ में नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। आप चाहते हैं क्या उस पर भी परतंत्र बना दिया जाए? न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं। सर, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिस्कशन। व्यास साहब, उस डिस्कशन में मैं फिलहाल नहीं जाना चाहता, बट इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। हाउएवर, आई होप द गवर्नमेंट विल हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी हु ब्रेक्स द लॉ। Anybody who breaks the law should be treated accordingly. That's all that I'm saying. Rest assured that is the position. Rest assured that is the situation. Right. And that will be the prevailing law. Gopal Tiwari ji wanted to say something. Gopal Tiwari ji, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर, प्लीज।
सर मैं यही बोलना चाहता हूं, अभी अभी व्यास जी ने कहा था कि 2.5 साल पहले ये गवर्नमेंट थी और उसके उस समय क्या परिस्थिति और अभी क्या परिस्थिति, क्या बदल हुआ। मैं इनको बताना चाहता हूं भाई, उस समय ये बदलापुर में जो अत्याचार हुआ ना, वो उस समय नहीं हुआ था। अगर आप कहते इतना मॉब, बिल्कुल मॉब यही चाहता था कि वो जो दरिंदे ने उसके ऊपर जो घिनौने काम किया उसको मारा जाए, फांसी दिया जाए। लेकिन आपका गवर्नमेंट का फर्ज तो होना चाहिए था उसको ट्रायल कोर्स करके उसको साबित करे कि ये करके आपने उसको मरवा के सब आगे का सब कुछ बंदा। वो जो आपटे का जो संस्था है आपकी, उसके सीसीटीवी कैमरे का फुटेज नहीं मिल रहा है था। वो आपटे कई दिनों तक लापता था। आप सबको पीछे का एविडेंस बिल्कुल ये करने के लिए अक्षय शिंदे को मार दिया। आपने कोर्ट ने तीसरी बार आज कहा है, तीसरी बार, कि जो पुलिसों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दाखिल कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल उसमें गवर्नमेंट तो और इनकी मनीषा और जो भी डिक्स है वो पूरे के पूरे एक्सपोज हो गए हैं सर। हम अरे अजमल कसाब को भी ट्रायल केस लेके उसको साबित करके फांसी चढ़ा दिया हमने। अब क्या बोलते हो। और Right. मतलब आगे का सब कुछ ढकने के लिए आपने उसको मरवा दिया। सोमनाथ सोमवंशी बेचारा संविधान का मोर्चा निकला तो शूटिंग कर रहा था, पुलिस कस्टडी में डेथ हो गया। आज हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नपुंसक कहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। नागपुर में राइट हो गए, आपके वहां के रेशिमबाग का आरएसएस को समझ में नहीं बात आती। कर्नाटक से आरएसएस को कहना पड़ता है कि अब औरंगजेब की कब्र का अभी ये मुद्दा मत छेड़ो, ये क्या है। और नागपुर के बारे में सबके बार बार, और उस समय जो कोरोना था तो उस समय हाईकोर्ट ने हमारे महाविकास आघाड़ी को सराहा था कि भाई अच्छी तरह से देश में 1 नंबर पे कोरोना का ट्रीटमेंट टैकल किया करके। और उसके बावजूद आप हार गए सर। बात कर रहे हो। और उसके बावजूद महाराष्ट्र के जो रोजगार चले गए, उद्योग चले गए। गुजरात का इलेक्शन देके ये आपको एकनाथ शिंदे जी गुजरात के शहनशाह को मदद गोपाल तिवारी जी आप हार क्यों गए के प्रति उन्होंने बिल्कुल ये द्रोह किया, मैं तो बोलूंगा। और क्या गोपाल भाई, अब कोई चुनाव नहीं है, 5 साल चुनाव के भाषण मत करिए। अरे चुनाव के भाषण आप In any event, gentlemen, and Dr. Malhotra, आप इम्प्रेशन में रहिए। जी डॉक्टर मल्होत्रा जी, गोपाल तिवारी जी, सुशील व्यास जी, के बड़े नेता राज्यसभा में वोट में हिस्सेदारी क्यों नहीं किए। देश जानना चाहता है गोपाल भाई, आप मत रहिए, जनता है गोपाल भाई, जनता। देश जानना चाहता है राज्यसभा में आपके टावरिंग नेता ने वोट में हिस्सेदारी क्यों नहीं की। बस वोट पे मैं नाम नहीं ये लेना चाहता। बातें, ये क्या, अरे क्या फिजूल की बातें करते हो आप। अरे 232 और इतने वोट का अपोज में गिरे ना, उसको इम्पोर्टेंस है। आपके तो भी कई सब नेता उपस्थित थे। सबसे बड़े नेता ने वोट में हिस्सेदारी क्यों बीजेपी नहीं की। एनडीए के सबके सब लोग इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता ने वोट में हिस्सेदारी क्यों नहीं की, मैं जानना चाहता, मैं नाम नहीं ले रहा उनका। इतना अपोज हुआ है, क्यों नाम क्यों नहीं ले रहे? जानना चाहता है आपका नाम क्यों नहीं ले रहे? राज्यसभा से गैर हाजिर क्यों था वो। सर राहुल गांधी जी ने लोकसभा में हिस्सा नहीं लिया। इसका ये आप उसमें सक्सेस नहीं हो गए। राइट, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। उन्होंने जो एब्सेंट रहे वो नेता ने बता दिया हम किसके साथ है। राइट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। गोपाल तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनैना मल्होत्रा जी, ऑलवेज अ प्लेजर मैम हियरिंग यू। एंड सुशील व्यास जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you. Good night. नमस्कार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। Well, I hope to God this Mangeshkar Hospital matter gets settled. I hope there will be some sort of action against the management. Doesn't seem like it so far. That is horrible. I mean, nobody can digest how cruel doctors can be. कसाई है 10 लाख रुपया इज राइटिंग डिपॉजिट, किस लिए? 10 लाख डिपॉजिट लो, फिर एडमिट करो, 5.5 घंटा बाहर रखी इस महिला को और कहा कि आप अपने मेडिसिन लेके अपने आप को ट्रीट करो। 5.5 hours. The first procedure is any serious matter. First thing is casualty में लेके जाओ उसको, पहले ट्रीटमेंट चालू, emergency treatment. Yes. Save the patient's life. And many hospitals are following that. Any cause of the पहले कैजुअलिटी में के लिए पहले आपको बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं वो, उसके बाद पूरे प्रोसेस शुरू होता है कि ये करो। ये तो पहले डिपॉजिट 10 लाख भरो, उसके बाद एडमिट करेंगे 5.5 घंटा शी। But the question that you had asked last time, not this time, पिछली बार जब आपने जो सवाल पूछा था प्रदीप जी, सबसे अहम वही है।
Unfortunately, there was nobody from the BJP, so we couldn't ask. What has happened to that Ayushman Bharat card? What? And medical insurance, free medical aid for everybody. What has happened to that? क्या हुआ है? मतलब उस विषय के बारे में प्रदीप जी कोई बात ही नहीं कर रहा है. मतलब मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, very frankly. The Prime Minister claims that आरोग्य मंदिर इतने मैंने डेवलप किए कि एक गरीब आदमी कोई भी आरोग्य मंदिर में जाए, उसी मंदिर से he'll be connected to the most best specialty hospitals of the country. Yeah, we saw that in and he Pune. will get a relief. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑन द ग्राउंड प्रधानमंत्री जी की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है. इसका मतलब ये हुआ, या तो फिर ये सब लोग साजिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उसको वो झूठा करार दें. मतलब ये हो रहा है. आई मीन दिस इज टेरिबल व्हाट हैज हैपेंड. एंड स्टिल not a single person from the management, not a single person who was involved over there from the administration, not one person has been arrested. Pradeep ji, एक बंदे का अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक. They are trying मंगेशकर to हॉस्पिटल में. make Dr. Gaisas Bakra the entire thing scapegoat और उनसे कहा कि आप रिजाइन कीजिए. अब ये पूरी चीज आप डॉक्टर गैसास पे करेंगे कि the hospital is not aware of what Mr. Gaisas is doing, and Mr. Gaisas has very illegally asked for 10 lakh deposit. Now he is acting on behalf of the hospital. And now I think the action has to be taken. Action has to be taken now, and just like that, action has to be taken in the Cooper Hospital and that agency which is employing those contract workers at Cooper Hospital, where that boy died. exactly. So that has to be done. Bilkul. And we will not leave that story as we promised you. We will not leave it. Well, that's just about it in tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. Only thing is, Pradeep ji, I expected that our friend from the Congress, Gopal Tiwari Saab, would be very passionate about the reset that the Congress is doing, but I didn't get that feeling. Very frankly, I didn't get that feeling of enthusiasm. कि हो सकता है कि कांग्रेस ने इतनी बार नई चीजें ट्राई करी हों कि शायद अब लोगों को लगता है कि अब क्या यार क्या बोलें इसके बारे में. मुझको ऐसा लग रहा है. I mean, it's not sticking. He's Not- talked about again institutional survey, जातीय जनगणना, economic survey, financial survey. Nobody understands this. ये भाषा किसी को समझ में नहीं आती प्रदीप जी. बोल के बोले कि तेलंगाना में हमने किया है, हमने वही देखा कि गरीब आदमी टॉप सीईओज में नहीं है. Is that having an impact? I mean, understand. I want. सर ऐसा है जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, 1000 बार लोग उनको बोल चुके हैं, हम भी बोल चुके हैं न जाने कितनी बार कि भैया गांधी जी का तरीका आप अख्तियार कीजिए, गरीबों के बीच में जाइए, उनके बीच में रहिए, प्लीज लिव अमंग द पुअर एंड यू विल कम टू नो द रियल इंडिया. आज की तारीख में आपकी बात जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है. भारत जोड़ो यात्रा के वक्त प्रदीप जी राहुल गांधी जी की बात लोगों तक पहुंची थी, जिसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा. अब ये बात लोगों के समझ में क्यों नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आ रहा. कांग्रेस को काम करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आवर राकेश शेट्टी साहब ऑफ मुलुंड, बिल्कुल छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब वो तो लुक एट द मैनर इन विच ही वाज एबल टू ऑर्गेनाइज पीपल ऑल अराउंड. इसका मतलब कांग्रेस की गुडविल है प्रदीप जी. कांग्रेस को लोग चाहते हैं, कांग्रेस से लोग प्यार करते हैं. बस वो चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है, कांग्रेस के जो नेता हैं, they should provide them with proper leadership. That's it. That's all that is required. That one thing we admit Rahul Gandhi jo bola कि only we are the people who can enforce a change. जी, Because we got a presence across the country. that is and true. he's right. He's absolutely right. He's absolutely right. But now you have to have programs that touches the hearts of the people, and they Sir- get involved with you. In a Sir, way. there was an old line. I know this used to belong to a bank, international bank, but I think it works for the Congress. Think global, act local. For the Congress, it should be think national, act local. आप पूरे हिंदुस्तान का सोचिए, लेकिन लोकल इश्यूज को उठाइए और उस पर जरा काम कीजिए. तभी जाकर के भारत को वो विपक्ष मिलेगा जो भारत डिजर्व करता है. सर, विदाउट एन ऑपोजिशन देयर इज नो डेमोक्रेसी. ऑपोजिशन इज नेसेसरी. लेकिन अभी क्या है कि जिस प्रकार कांग्रेस अभी चल रही है, मैं जरा बड़ा डिसहार्टन हो जाता हूं कि ये क्या कर रहे हैं यार. And there were the fantastic think tanks, because I remember Karan Singh once telling us, Nigah Buland Japur so Sukandal Nawazi. He has to have a vision beyond the immediate. You have a voice that touches the hearts of the people and a personality fused with compassion for humanity. I mean, all this is there. But कहाँ आप कर रहे हो? सब कुछ think और अभी आज की तारीख में जिस प्रकार वक्फ के ऊपर लेकर के जो स्टैंड कांग्रेस ने लिया है, आई थिंक इट इज गोइंग टू बैकफायर ऑन द कांग्रेस.
मुझको ऐसा लग रहा है वेरी फ्रैंकली, Always a क्योंकि confused stand. Rahul Gandhi will speak, Priyanka Gandhi is absent, and then Sir, you come out and say I'm going to change, overturn this majority. मोदी साहब ने और बीजेपी ने जो पासबंदा मुसलमानों को लेकर के जो बात करी है, सर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बेवकूफ नहीं है। दे हैव अ ह्यूज चंक ऑफ मुस्लिम सपोर्ट, और उनको मालूम है कि मुस्लिम्स में जो ओबीसीज हैं वो सपोर्ट करते हैं उनको, और इन ओबीसीज की कोई प्रेजेंस नहीं है वक्फ बोर्ड्स में। 32 वक्फ बोर्ड हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें एक भी मेंबर ओबीसी नहीं है। मुसलमानों में एक भी पासबंदा मुसलमान नहीं है, यानी जिनको हम अजलाफ बोलते हैं एक भी नहीं है। तो आई डोंट नो हु इज एडवाइजिंग द कांग्रेस एट द मोमेंट। आपने महाराजा करण सिंह साहब की बात करी। महाराजा करण सिंह साहब, अरे सर, भले वो अरबी हो, भले वो उर्दू हो, भले वो फारसी हो और संस्कृत हो, जिस तरीके से वो संस्कृत में पूरा भाषण ही नहीं आपसे वार्तालाप कर सकते थे संस्कृत में, दैट हैड टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। वेयर आर दोस पीपल इन द कांग्रेस नाउ? आज कहाँ है? So, in any event, that's just about it from both Pradeep ji and myself. I hope you enjoyed the show. It was a very, as compared to yesterday's show, it was a very nice, balanced kind of a discussion today. But all the same, good to see Supriya Sule ji fighting for the rights of people of her constituency and going on a hunger strike, albeit for just about 6 or 7 hours. And she had a cup of tea to break her fast, and she told everybody कि अगर ये काम शुरू नहीं हुआ, she'll be back. So I thought that was a very, very good thing. In any event, from both Pradeep ji and myself, जाने के पहले सब्सक्राइब जरूर करें जरा चैनल को प्लीज। The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation, called Nation Now. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय। Bharat Mata ki Jai.